In this lecture we will discuss how the logical address will be converted to physical address in case of contiguous memory allocation. And in the later part of video we will discuss the numerical on first fit, best fit and worst fit allocation strategy. कि पहला you do have a program which is using the logical addresses. Program is being loaded into the main memory. When the CPU fetches the instruction from the main memory, CPU fetches the instruction from the main memory, it sees the logical addresses. Okay, when the CPU sees the logical addresses, it has to be converted into the actual physical address. कैसे करेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम लास्ट क्लास में बात किया था कि we do have two registers named as a base register and the limit register. Base register would contain the starting address of the program where it has been loaded into the main memory, and that content of the base register would be added to the this content of the base register would be added to the logical address to obtain the physical actual address. इस corresponding हमने इसको example लेते हुए भी बात किया था कि suppose there is an instruction M28, then this particular M28, how this 28 will be converted. Content of base register is 24, logical address is 28. Add this logical address to base register and you will be getting the actual physical address, that is 28 plus 24, you will be getting 52, and 52 corresponds to the actual physical address. इसी की कंटिन्यूटी में अब आती है बात मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU. अब ये पूरा स्कीम बेस रजिस्टर, योर लिमिट रजिस्टर, इन सब को मिला के ये एक पर्टिकुलर यूनिट जो कि कन्वर्ट करेगा एक हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप्स द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस वुड बी टर्म्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो सिंपल सा डेफिनेशन, हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप्स लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस वुड बी टर्म्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. The value of relocation register, बात एक ही है, relocation register बोले या दूसरा नाम है उसको सिंपल वर्ड्स में base register बोले, is added to the every address generated by the user program at the time it is sent to the memory. The user program deals with logical addresses and it never sees the physical addresses. ये तीनों पॉइंट हम बात कर. CPU generates a logical address. Suppose it is in 346. CPU do contain a relocation register or the base register. Suppose the value of the relocation register is 14,000. This memory management unit MMU will add the relocation register to the logical address. That means, or in this particular case, it is 346, the logical address that has to be converted into the actual physical address of the main memory. 346 will be added to 14,000 and the actual physical address of the main memory obtained would be 14346. Continuous memory allocation है, तो अब ये हम तीन तरह का मेमोरी स्कीम्स हो सकती हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन चल रहा है हमारा, अभी हमने पेजिंग की बात नहीं की है, सेगमेंटेशन की बात नहीं की है, वी हैव जस्ट टॉक अबाउट, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. जब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हाउ द लॉजिकल एड्रेस इज बीइंग कन्वर्टेड टू द फिजिकल एड्रेस, तो आप ये लॉजिकल मेमोरी MMU को रेफरेंस में रखते हुए अपना आंसर करेंगे. यहाँ पर लिमिट रजिस्टर और रीलोकेशन रजिस्टर दोनों दिखाया हुआ है. दिस होल वुड बी टर्म्ड एज योर MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि हाउ द लॉजिकल एड्रेस इज बीइंग कन्वर्टेड टू physical address. So CPU generates a logical address. First of all, it has to be checked whether this address generated by the CPU lies within the limit of the program or not. First step would be whether the address generated by the CPU lies within the address space of the currently executing program or not. This limit register would contain the size of the program. If your program size is suppose 10 KB, that means this limit register would contains 10 KB. If the address generated by the CPU lies outside the range of this 10 KB, that means the address generated by the CPU is not of the address space of this particular program. क्या है कि जो भी address generate हुआ है, it should be less than
If it is greater than, that means it lies outside the range of the program and it is an error or it is an addressing error. If it is less than, that means if it is less than logical address generated by the CPU, it lies within the range of this program, then this particular address, if it passes less than operator, then it will be added to the relocation register and you will be obtaining the physical address. अब इसी के बाद अब दो देखिए, अब बात हो चुकी है कि दिस इज, अब दो चीजें पहले तो ध्यान रखना है। जब भी न्यूमेरिकल आना है, आपको पहली चीज तो ध्यान रखनी है, वो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की बात कर रहा है या फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले ये देख लेना है। ऑल डिपेंड अपॉन दीज two studies, whether it is saying a fixed size partition or whether it is saying a variable size partition. क्वेश्चन में वो नहीं लिखता अगर, तो assuming it is a variable size partitioning, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेना न्यूमेरिकल में मेंशन है या नहीं है। लिखा होगा फिक्स्ड साइज पार्टीशन एज्यूम करना है, वेरिएबल साइज पार्टीशन एज्यूम करना है। ना लिखा हो तो आप लोग एज्यूमिंग इट इज अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, वेरिएबल साइज अजम्पशन लेते हुए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी चीज आपको देखना है कि ये जो फर्स्ट डायग्राम, अगर आप इस पहले डायग्राम को देखें, दिस इज शोइंग द स्नैपशॉट ऑफ द मेमोरी, multi programming approach, operating system is there, various processes are there, process। अब दूसरी चीज फिर ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही बात जब हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, ये दोनों ही स्कीम्स की बात कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दैट मींस प्रोग्राम जब भी लोड होगा इनटू द मेन मेमोरी, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर लगातार पूरा लोड होने वाला है। जो भी प्रोग्राम लोड होगा वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर बाय पार्ट्स में लोड नहीं हुआ है, तो मुझे देखकर ही पता लगेगा इट इज टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर प्रोसेस 5 इज बीइंग लोडेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली प्रोसेस 8 इज बीइंग लोडेड, सिमिलरली प्रोसेस 2 इज बीइंग लोडेड। अगर ये ही कंटिन्यूअस ना होकर नॉन कंटिन्यूअस होता तो आप देखते कि ये जो कंटिन्यूटी में प्रोग्राम लोड है, ये कंटिन्यूटी में ना होकर डिफरेंट प्लेसेस पर मेमोरी में लोड हो सकता था। उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो जब प्रोग्राम आएगा इट विल बी लोडेड, और जब प्रोग्राम जाएगा तो फ्री स्पेस विल बी क्रिएटेड। सपोज पहला सीन देखा, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। इस फर्स्ट डायग्राम में देखा 3 प्रोग्राम्स हैज बीन लोडेड, प्रोसेस 5, प्रोसेस 8 एंड प्रोसेस 2। नेक्स्ट में देखा प्रोसेस 8 हैज बीन कंप्लीटेड, process 8 has been completed and it makes a free space. This free space को बोला जाता है hole. This free space is known as hole. So there are in the memory there are allocated partition में process 2, this is a allocated space, this is a allocated space, this is a allocated space and this is a free space. अब जब भी नया मेमोरी में एक प्रोसेस लोड होने के लिए आएगा तो कुछ वेरियस स्कीम्स के अकॉर्डिंग लोड हो सकता है। वहां पर 3 स्कीम्स हैं, 3 स्कीम्स के अकॉर्डिंग लोड किया जा सकता है आपका कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में। अब आप देखेंगे कि कुछ प्रोसेसेस नए आएंगे, कुछ प्रोसेसेस जाएंगे मेन मेमोरी के बाहर। तो ऐसा करते हुए मेन मेमोरी में डिफरेंट स्पेसेस पर कुछ एलोकेटेड स्पेस आ जाएगा और कुछ फ्री होल्स आ जाएंगे, कुछ एलोकेटेड स्पेस आ जाएगा, कुछ फ्री होल्स आ जाएंगे। तो डिफरेंट, कहीं यहाँ फ्री हुआ, ये कुछ एलोकेटेड हुआ एंड देन फ्री हुआ। तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये फिक्स पार्टीशनिंग है और वेरिएबल पार्टीशनिंग है। तो मेजर डिफरेंस पहले बता देता हूँ, व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस इन द टू अप्रोचेस। अगर फिक्स्ड पार्टीशनिंग है तो जो भी फ्री स्पेस है वो अगर आपने किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया तो आगे फ्यूचर में वो पर्टिकुलर स्पेस में किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकता। दोबारा से ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर वी आर यूजिंग फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, ऐसे केस में अगर किसी फ्री स्पेस में आपने प्रोसेस एलोकेट कर दिया और उस फ्री स्पेस में कुछ अवेलेबल स्पेस बचता है तो that particular available space would be wasted. It cannot be used for allocating to the another process. इस बात का ध्यान रखना, यही मेजर डिफरेंस है between the fixed and the variable size partitioning. In fixed size partitioning, if there is a, suppose this is a free space of, example ले लेते हैं, this is a free space of 4K
if it is a free space of 4k और एक नया प्रोसेस आता है, न्यू प्रोसेस केम एंड द साइज ऑफ द न्यू प्रोसेस इज 3k, it can be easily given this particular free space. लेकिन ऐसा करने के बाद अब 1 kb of space would be left free after allocating this 4 kb process into this, after allocating the 3 kb process into this 4 kb, 1 kb of space would be left free. This 1 kb of space cannot be allocated to any other process, to any other new process. This would be wasted. वहीं अगर ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग होता तो दिस अवेलेबल स्पेस जो कि एलोकेट करने के बाद रह गया, इट कैन बी यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सम अदर प्रोसेस. एक बार किसी फिक्स साइज के होल में स्टोर कराने के बाद रिमेनिंग स्पेस विल बी वेस्टेड, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर प्रोसेसेस. व्हाइल इन केस ऑफ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, एक बार एलोकेटेड कराने के बाद रिमेनिंग स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर अनदर प्रोसेसेस. अब दोनों के ही अंदर, दोनों भी, चाहे वेरिएबल साइज हो चाहे फिक्स साइज हो, यू कैन हैव 3 स्कीम्स: बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट. फर्स्ट फिट में हम एलोकेटेड द फर्स्ट होल पहले स्पेस से स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट सर्चिंग द मेमोरी फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन. जैसे ही हम फर्स्ट फ्री होल से सर्च करना स्टार्ट करते हैं, वी विल कंपेयर द साइज ऑफ द फ्री होल and the size of the coming process. If the size of the free hole is enough, इतना है वो कि उसमें नया प्रोसेसेस को एलोकेट किया जा सके, हम उसमें एलोकेट कर देते हैं. पहला प्रोसेस आया, स्टार्ट से स्टार्ट किया, जो भी पहला फ्री होल मिला जिसमें कि आप एलोकेट कर सकते हैं, उसमें एलोकेट कर दिया. ठीक है, इसी तरह हम कंटिन्यू करते थे, हमेशा कंटिन्यू करते हैं. दूसरा प्रोसेस आया, फिर जो पहला फ्री होल है वहां से आपने सर्च करना स्टार्ट किया. जैसे ही पहला फ्री स्पेस मिला जो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, आप उसको एलोकेट कर देंगे एंड सो ऑन. अगर फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग है तो जो भी रिमेनिंग स्पेस है आफ्टर द एलोकेशन वेस्ट हो जाएगा. दैट वेस्टेड स्पेस वुड बी टर्म्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. और अगर वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का यूज कर रहे हैं तो जो भी कुछ आपका वेरिएबल आफ्टर द एलोकेशन स्पेस बचेगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ द अनदर प्रोसेसेस. वो अपने आप में एक नया होल फिर से बन जाएगा. इसी तरह बेस्ट फिट, नेक्स्ट इज द बेस्ट फिट. एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल. अब सारे होल्स को सर्च कीजिए और वो पर्टिकुलर होल जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा का मतलब है सबसे छोटा हो सब में जिनको वो एकोमोडेट कर सकता है प्रोसेस को. सबसे छोटा वैसे नहीं ढूंढना है, सबसे छोटा वो जो कि एकोमोडेट कर सकते हैं. अगर साइज आपका, सपोज जो कमिंग प्रोसेस था उसका 50 kb साइज है, सपोज द प्रोसेस कमिंग इज ऑफ 50 kb, और आपने होल सर्च किए कि एक आपके पास 52 kb का है, एक 60 kb का है, और एक 100 kb का, और एक 40 kb का है. तो 40 kb के होल में तो प्रोसेस आ ही नहीं सकता. जो 3 बचे, दैट मीन्स 52, 60 एंड 100, तो इन तीनों में से जो बेस्ट फिट होगा, दैट इट मींस जो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट होगा, दैट मींस 52 kb. यू विल एलोकेट योर प्रोसेस ऑफ 50 kb to 52 kb and this remaining 2 kb space, if it is an fixed size partition, would be termed as internal fragmentation. और अगर ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है तो इसको आप एक नया होल बना देंगे ऑफ 2 kb. इसी तरह अब बेस्ट फिट में क्या होता है, प्रोड्यूसेस द स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल. ये हमेशा से जो होल बचेगा वो छोटा होगा. फर्स्ट फिट में यही सिनेरियो जस्ट अपोजिट है. फर्स्ट फिट में क्या करेंगे, आप सारे होल्स को सर्च करेंगे, जो सबसे बड़ा होल है उसको आप एलोकेट करा देंगे. अब देखिए यहाँ पर हाँ बोलो सर. ये होल सिर्फ तभी एलोकेट क्रिएट होगा जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर चुका होगा. हाँ, होल इज नथिंग अदर देन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस को ही होल बोल रहे हैं. या तो इनिशियली मेमोरी फ्री स्पेस होगा, इनिशियली मेमोरी इज फ्री, तब पूरा होल्स है वहां पर, इसी को बोल सकते हैं तब पूरे होल्स हैं. या एक बार प्रोसेसेस आ गया और आने के बाद जब प्रोसेस ने कंप्लीट हुआ तो इट लीव्स फ्रॉम द मेमोरी, तो उस केस में फ्री स्पेस जनरेट होगा. ये डायनेमिक है. प्रोसेसेस आ रहे हैं, आने पर एलोकेट किए जा रहे हैं, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं तो वो फ्री स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. उन फ्री स्पेसेस को हम होल बोल रहे हैं. तो जब भी न्यूमेरिकल गिवन होगा तो किसी एक टाइम इंस्टेंट पर स्नैपशॉट गिवन होगा न्यूमेरिकल में आपको. ठीक है, क्योंकि डायनेमिक इन नेचर है, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये डायनेमिक इन नेचर का तो न्यूमेरिकल नहीं दे सकते आपको. तो जब भी आपको एक स्नैपशॉट गिवन होगा सामने, सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख पाएंगे कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग को यूज करते हुए अगर हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग को
ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस समय स्नैपशॉट क्या कहता है मेरा, कि मेरे पास एक 50K का स्पेस है जो कि ऑक्युपाइड है. दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑक्युपाइड स्पेस. दिस 50K इज एन ऑक्युपाइड वन. 75K का एक स्पेस है जो कि फ्री है, जिसको हम होल बोलेंगे. 150K is again occupied. 175K is again 175K is again free, and again 300K is again occupied. तो मेरे पास 3 ऑक्युपाइड हैं और 2 फ्री हैं इस केस में. कौन कौन से ऑक्युपाइड हैं? 50, 150 एंड 300. दीज आर ऑक्युपाइड वन. फ्री कौन से हैं? 75 फ्री है और 175. अगर इस समय पर एक 200K का स्पेस आ जाता है, का प्रोसेस आ जाता है, इस समय पर अगर अभी न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि इस समय पर अगर मेरे पास एक 200K का प्रोसेस जनरेट होता है, साइज ऑफ द प्रोसेस इज 200K. क्योंकि हम कंटिन्यूअस, अब फिर ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस. तो मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर मेमोरी में कहीं भी 200K कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है. यहाँ पर मेरे पास 200K कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है. अगर मेरे पास 200K कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां ये देखेंगे कि मेरे पास जो फ्री स्पेस अवेलेबल है, फ्री स्पेस इज 175. एक 175 का फ्री स्पेस अवेलेबल है और एक 75 का फ्री स्पेस अवेलेबल है. लेकिन कंटिन्यूअसली में 200K का अवेलेबल नहीं है, तो आई कैन नॉट एलोकेट दिस 200K टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. आई कैन नॉट एलोकेट स्पेस जब तक कि कुछ नया स्पेस जनरेट नहीं हो जाता. तो दिस शुड वेट, और इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. द अवेलेबल स्पेस इज ग्रेटर देन द इनकमिंग प्रोसेस, बट it is not available in continuity, so we are not being able to allocate the space to the incoming process. This is known as external fragmentation. तो continuous memory allocation scheme का this is a major drawback. There would be the external fragmentation. यहाँ पर मेरे पास जो total space available है, it is of 250K. 250K का अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं 200K के प्रोसेस को एलोकेट नहीं करा सकता. इसी सिनेरियो को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो इसको दूर किया जाएगा नॉन कंटिन्यूअस में. लेकिन पहले भी न्यूमेरिकल को देख लेते हैं. सपोज जो मेरे पास प्रोसेसेस आ रहे हैं, इट इज ऑफ 25K, 50K, 100K और 75K. तो आपको एक और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये प्रोसेसेस आएंगे, आपको कंटिन्यूटी में उठाना है. दैट मीन्स फर्स्ट इन ऑर्डर लेना है. सबसे पहले 25K कंसीडर करना है, फिर 50K कंसीडर करना है, फिर 100K कंसीडर करना है, और फिर 75K कंसीडर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फिट. अब फर्स्ट फिट कहता था फ्री स्पेसेस को सर्च करिए, जो भी पहला स्पेस मिल जाए उसमें एलोकेट कर दीजिए. तो मेरे पास फ्री स्पेसेस कौन कौन से हैं? 75K है, 175K है. सबसे पहले कौन सा मिलता है जो कि 25K को एलोकेट कर सकता है? सबसे पहला 75K मिलता है. तो वी विल एलोकेट दिस 25 into the 75K. We will allocate this 25K in this 75K. और फिर ध्यान रखना है, क्या ये वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम है या फिक्स्ड साइज है? अगर ये फिक्स्ड साइज होती तो ये वेस्ट हो गया था. रिमेनिंग 50K हैज बीन वेस्टेड. अगर ये वेरिएबल साइज ना होकर फिक्स्ड साइज होती, क्योंकि अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, तो एक नया होल बन गया ऑफ साइज 50K. आफ्टर एलोकेटिंग दिस 25, एक नया जो भी रिमेनिंग स्पेस है, एक नया होल जनरेट हो जाएगा ऑफ 50K, और दिस पर्टिकुलर स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर एलोकेटिंग ऑफ द अनदर प्रोसेस. अब सेकंड प्रोसेस आता है, दैट इज ऑफ द साइज ऑफ 50K. अब फिर हमने सेम स्कीम अपनाया, स्टार्ट किया पहले होल से, दिस इज 50K. पहला ही मुझे मिल गया जो कि इस 50K को एकोमोडेट कर सकता है. वी विल असाइन दिस टू फर्स्ट पार्टी. देन 100K फिर स्टार्ट करना है. ये एलोकेटेड है, यहाँ कोई स्पेस नहीं है. ये एलोकेटेड है, ये भी फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है. जो मेरे पास फ्री स्पेस, पहला फ्री स्पेस है, ये है. कितना है? 175 है. ठीक है, जो पहला मिल जाएगा उसमें एलोकेट कर देंगे. दैट मीन्स दिस 100K विल बी एलोकेटेड हियर, और रिमेनिंग वुड बी 75K. नेक्स्ट आया, एक ही फ्री स्पेस है 75K, जो कि वेरिएबल साइज था. नया होल जनरेट हुआ and it will be allocated. तो जितने भी प्रोसेस थे all are being
एलोकेटेड। अब कोई साइज ऐसा भी हो सकता था, अगर सपोज मैं इसको चेंज कर देता, 175 कर देता, इसको रिमेनिंग था सिर्फ 75, 100K जब आया तो इट इज बीइंग एलोकेटेड हेयर, और जो बचा हुआ था वो 75 का था, और अगर नेक्स्ट प्रोसेस 175 का होता तो इट हैज टू वेट, इट कैन नॉट बी एलोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इसी तरह बेस्ट फिट, जब आप बेस्ट फिट का न्यूमेरिकल करेंगे तो जब भी ये आप बनाए ना डायग्राम, तो आप इसको स्टेप वाइज जरूर बनाना, नहीं तो क्वेश्चन पेपर चेक करने वाले को नहीं पता लगता कि आपने किसको कब एलोकेट किया। अगर ये आपने एक ही फ्लो में, एक ही पिक्चर में बना दिया, तो मुझे नहीं पता लगता या किसी को भी नहीं पता लगता कि वेदर दिस 25 कब एलोकेट हुआ, कब 50 एलोकेट हुआ। तो जो भी ये आप एलोकेशन करें, स्टेप वाइज एक नए पिक्चर में ड्रॉ करें। इसी तरह बेस्ट फिट, जब हम बेस्ट फिट की बात करेंगे, जब हम बेस्ट फिट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है 25, 50, 100 और 75। नया डायग्राम बेस्ट फिट देखिए, पहला था 25, सेकंड था 50, थर्ड था 100 और फोर्थ था 75। बेस्ट फिट का मतलब है आप फ्री स्पेसेस देखेंगे, फ्री स्पेस में से जो सबसे छोटा होगा उसको एलोकेट कर देंगे। छोटा इन सेंस कि जो भी उसको एकोमोडेट करने के लिए सबसे छोटा होगा। तो आपने यहाँ पर पूरे स्पेस को सर्च किया, आपके पास दो फ्री स्पेसेस मिले। क्या क्या फ्री स्पेस मिले? पहला वाला है 25 के लिए बात कर रहे हैं, जब 25 आया तो आपको दो फ्री स्पेसेस मिले, वन इज ऑफ 50K एंड वन इज ऑफ 175K। बोथ आर केपेबल, दोनों ही केपेबल हैं फॉर स्टोरिंग द 25K प्रोसेस। लेकिन कौन सा चूज करना है? अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट एल्गोरिथम सेज इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट हो। 50K इज स्मॉलेस्ट, सो वी चूज दी 50K। तो 50K को चूज किया गया एंड इट विल बी गिवन टू 25K। अब एक स्पेस बच गया, एक नया होल क्रिएट हो गया ऑफ 25K। अब नेक्स्ट 50 आता है, नेक्स्ट इज ऑफ 50। अब दो फ्री स्पेसेस है मेरे पास। सर ये होल 75 था, ये होल 75 था। ओके ओके, कोई नहीं, तो ये 50 बच गया, ठीक है, ये 50 बच गया। 75 था, ये 50 बच गया। अगर ये 50 बच गया तो इस बार फिर आपने देखा कि कौन कौन से फ्री स्पेसेस हैं। वन वुड बी ऑफ 50K एंड वन वुड बी ऑफ 175K। तो जब 50 एलोकेट करना है तो जाहिर सी बात है यही 50K इज द स्मॉलेस्ट वन अमंग द 50 एंड 175, दिस वुड बी एलोकेटेड हियर। उसके बाद 100 एक ही है, 100 एलोकेट हो गया। उसके बाद बचा हुआ 75 हो गया। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आपको अभी नहीं पता लग रहा है कि क्या चेंजेस नजर आएंगे। पहले की तरह ही सिमिलर टू दी बेस्ट फिट, सिमिलर टू दी फर्स्ट फिट ही बिहेव कर रहा है। सिमिलरली अगर यही वर्स्ट फिट होता तो वर्स्ट फिट में आप क्या करते कि ये जो 25 आया था, सबसे बड़ा होल एलोकेट करना था। दैट मीन्स सबसे पहले आपने सर्च करते 50 एंड 175। अब मैं वर्स्ट फिट की बात बोल रहा हूँ, तो सबसे बड़ा जो भी पोर्शन होगा उसमें आप एलोकेट करेंगे। दैट मीन्स 50 अवेलेबल था, 175 अवेलेबल था, लार्जेस्ट इज 175, तो 20 विल बी एलोकेटेड टू 25 वुड बी एलोकेटेड टू 175। रिमेनिंग 150 का स्पेस एक नया होल बना लेगा। नेक्स्ट वाज 50, तो अवेलेबल वाज 75 एंड 150, तो 50 यहां पर ही एलोकेट होगा एंड रिमेनिंग वुड बी 100। नेक्स्ट इज 75 एंड 100, 100 वाला यहीं पर एलोकेट होगा, ये पूरा भर गया। नेक्स्ट इज 75, एक ही होल बचा है जो कि अपने आप में बड़ा है, और यहाँ पर 75 स्कीम। आगे समझ में कोई डाउट? In the next video we will be starting paging.